कल का थोड़ा सत्संग बाकी रहा है वो ले लेते हैं, पीछे आगे जो जिसको पूछना चाहो। Kelly, if you want to ask anything, you can ask. Okay? Question. Do you want slip of paper? Okay, all right. Even Ava also you can tell. Ava, if she wants to come, you can call her. She wants. Okay. ચાલો હવે આપણે આ લઈએ. શું છે? એ एक ये तो आ गया है ना 5,000 वर्ष बाद, ये तो आ गया। अभी हम लेते हैं, आज हम पूछना चाहेंगे कि कल ज्ञान विधि में जो मुमुक्षु जन और उसमें से महात्मा बने वो आज यहाँ आए हैं। अगर आए हैं तो बहनों में और भाइयों में हाथ ऊंचा करो बड़ा।
आए हैं, देखो वो दिखाई पड़ता है, कितना है, एक दो, यहाँ कितना है, बहनों में है कोई, बड़ा ऊंचा हाथ करो, ऐसा नहीं करो, छोट जोर से ऊंचा करो, दो हाथ नहीं करना, नहीं तो हम गलती हो जाएगी मुझसे। और यहाँ भाइयों में ज्यादा तो थोड़ा पीछे है वो, थोड़ा आगे आ जाओ। ये आज बहुत महत्व की बात कर लेते हैं आपसे, बहुत महत्व की बात कर लेते हैं। ये बाकी बाजू में जगह है, बाजू में जगह है, बैठ जाओ थोड़ा सा। और बहन लोग है तो यहाँ में आगे भी बैठ सकती है थोड़ा, अब ज्यादा है ही नहीं नंबर में, आ जाओ। This experiment of our inner state of being, that is our inner experience, core experience, that is perpetual, that has happened within, because of which we are totally separate from this body, and at the same time body is with us. You understand? So because of such a state of our being divine, the experiment gets conducted through the body, through the medium of our speech, which is called a divine speech. Do you understand? Because it is not of ownership by us. We do not own that speech. It just flows out. That is to say, experience on its own just flows out through the medium of words which are material. Though material, they are divine in the sense that they flow out by being experience state of being words. Do you understand? That is how it is. It's a real experiment. A scientist bent of mind can easily understand this, very easily. An open state of mind can easily grasp it. Can it not? Easily. More the mind open and open to grasp reality as far as possible from any corner I say. He won't mean it by hook or crook, but he would mean it by any way. Even if it is from a deranged person, yes sir. For him, he is a learned one. For the world, he is a deranged one. Do you understand? It depends. Western philosophers were considered like that, right? And Alexander did consider like that. And yet ultimately he got the lesson from such a person. He was of very high status, right? Wonderful. It happens. માફ કરો ભાઈઓ, અમારી આ બેન જવાની છે એટલે આટલું થોડુંક એને થોડી વાત કહી દીધી કે આ વોટ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ. સો વેન you come to America, you will benefit. Tell Ava also, okay? And those anybody who wants to benefit. Many Americans have benefited, some of them. And this experiment we conduct there in English. But since you are here, it's difficult. So then. तो હવે તમે બધા બહેનों ने भाइयों आप जो है कल ज्ञान में बैठे हैं और बाकी के जो है उसमें जो नए हैं वो तो ठीक है, हरकत नहीं है। और जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु जिनके पास अंतर चक्षु है, वो सभी के लिए ये सत्संग तो एक ही बना रहेगा। गौर से सुनिए,
तो प्रश्न है उनके लिए, है मेरे सूरज भाई साहब का। ये प्रश्न 24 दिसंबर का ही लिखा हुआ है, अभी 2 days बिफोर। तो पूछते हैं कि पहली और दूसरी आज्ञा को, पहली और दूसरी आज्ञा को धर्म बोलते हैं। बोलो। और तीसरी और चौथी आज्ञा को तप बोलते हैं। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है आज्ञा का। लेकिन समय के अनुसार इस सिद्धांत स्वरूप ही रहता है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। तो एक काल के अनुरूप ये सिद्धांत ये रूप में आया साहब, आप समझे? तो धर्म और तप, उनका अर्थ समय के अनुरूप, काल के अनुरूप बदलता रहता है साहब। जब नॉर्मल इवोल्यूशनरी क्रम में आते हैं और डूअरशिप से आगे प्रोग्रेशन क्रम में रहते हैं, तब यही आज्ञा धर्म का रूप जो होता है, वहां धर्म और तप की जो भाषा और समझ है वो अलग ढंग से है। वो कर्ता भाव से होती है। धर्म भी कर्ता भाव से माना गया है, और इसीलिए तप क्रिया से कर्ता भाव से माना गया है। आप लोग सब समझ गए? नहीं समझे? कर्ता भाव अर्थात धर्म का पालन करने वाला मैं हूं, ये मेरा धर्म है, तो मालिकीपन हुआ। और जहां मालिकीपन है, जो खुद सही नहीं है, वो उसको मालिकीपन मानना वहां, और वहां धर्म मानना, वो कर्ता भाव है। सब ठीक है ना? धर्म तो धर्म गलत नहीं है, लेकिन वो लोक भाषा से है। क्या बताया? इसीलिए हम सारे विश्व में, वर्ल्ड में देखते हैं, देश देश में, कंट्री कंट्री में, जाति जाति में, और एक ही देश में भी धर्म भिन्नता स्वरूप से आज पीसीज, टुकड़े हो गए हैं, मान्यता के स्वरूप में हुए हैं। जैसे जितने जितने ग्रुप, ऐसी मान्यता हो जाती है, और एक बड़ा हो जाता है तो इसी का मान्यता बनती है, और हर एक के अंदर अलग अलग ग्रुप भी बन जाते हैं। ऐसा धर्म बोला जाए, एक कर्ता भाव का कारण है। मैं वैष्णव हूं, लेकिन एक ही प्रकार के वैष्णव नहीं होते। मैं शैव हूं तो वो भी नहीं होते, मैं जैन हूं तो वो भी नहीं। लो भाई, ये कैसी बात हो गई? क्या बात हो गई? ये 3 मंत्र है, उनके बड़े पुरुष, वो तो सभी में मतभेद नहीं था साहब, बिल्कुल नहीं था। इसलिए तो 3 मंत्र अनादि से, फ्रॉम टाइम्स इमॉर्टल, वो पेरेनियल स्वरूप से अनादि मंत्र बोले गए हैं। और वही एक अद्भुत, अगर धर्म समझे, धर्म की सच्ची भाषा समझनी है तो यहां समझ में आती है। यहां समझ में, हम भले वैष्णव हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हृदय से है, तो कहीं कहीं वैष्णव धर्म के फांटे जरूर वर्ग पड़े हैं, फिर भी हृदय से मैं है मेरे, तो मुझे कहीं भी फाटा हुआ, कहीं भी गया
तो मुझे दिक्कत नहीं रहेगी साहब, हो गई? नहीं रहेगी, बोलो ने, बिल्कुल नहीं रहेगी। बस ये बोलो। ओ कृष्ण भगवान एक ही स्वरूप से और पुरुष स्वरूप से मेरे हृदय में रहेंगे साहब, उसके अलावा दूसरा रूप से नहीं, अर्थात वासुदेव नारायण स्वरूप। जयंती साहब सुनते हैं? इतना ही बात है, आप समझे? आप स्थानकवासी जरूर है, डेरावासी है, मतलब कोई हरकत नहीं है। क्या हरकत है जमेशानंद जी? दिगंबर हो गए, क्या हो गया? कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं ले पाता। जैन है हम। किसको? तो साइंटिस्ट, अंतिम जो साइंटिस्ट हुए महावीर, तो उनको ही फॉलो करते हैं, उसमें कोई बेहमत नहीं है। तो हृदय में तो है ही ना, ये बात बनी। आज ये जगत में सब समझते हैं जमाना वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान का है। आज के यूथ लोग समझदार हुए हैं और प्रजा भी इतनी तो समझदार है ही कि जहां ये सारा रेडिकलिज्म धर्म के वर्ग का न चले और सामान्य जन समुदाय को अपने हृदय में धर्म सही ढंग से रहे, वो सभी की इच्छा है कि नहीं साहब? नहीं, आप नहीं, बरोबर सीधा बोलो ने। पर कोई सुनाई तो देता नहीं, मुझे नहीं सुनाई देता तो वहां का, मुझे नहीं सुनाई देता तो क्या है दादा, ये इच्छा रहती है, रहती है वो इच्छा। पहला गलती से साहब ने बोला नहीं रहती होगी, लेकिन पीछे बोले रहती है। नहीं, पहले से ही दादा मैंने यही ऐसा ऐसा तो मैंने यही कहा कि इच्छा रहती है। तो अच्छा, तो मैंने जरा सुना कम ऐसा। मेरे बोलना है आपकी आवाज धीरे नहीं, मैं आपके साथ थोड़ी गम्मत कर लेता हूँ। नहीं, अच्छा है बहुत। आप इतने बड़े अच्छे हैं, हमारे सबके वडील हैं, फिर भी अच्छे हैं। जयंती भाई साहब, वडील ऐसे होने, ऐसा क्या आपको क्या लगता है? डांटे तो उसको वडील कैसे बोलते हैं? धर्म के ऊपरी हुए डांटना तो नहीं चाहिए ना। उत्तम जी क्या बोलते हैं? बोलो ने। होनी चाहिए आज्ञा। धर्म और प्रेम का तो नाता है। क्या है? प्रेम का नाता। इसीलिए धर्म हृदय से ही संलग्न हमेशा होता है, वैसे ही संलग्न होता है। ये बात सिद्धांतिक है और काल के परे है। कार की असर उन्हें नहीं लगती, उसका रूप बदलता होते हुए फिर भी सामान्य जन के हृदय में रहता है, लेकिन रूप बदल जाता है। इसीलिए वो त्रस्त हो जाते हैं और ढूंढते रहते हैं। कोई फरिश्ता कोई आवे, सच्ची बात समझावे, तो ये लोग बैठे रहते हैं। हमारे बिहारी आनंद जी जहां जाते हैं, मैं खुद नहीं जानता, ऐसा करके बोल रहे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो भाई? पता नहीं होता तो बोल देते वो तो अंदर हृदय में रखना है ना। नहीं, अच्छे ये हमारे गुरु सब अच्छे हैं, गुरुदेव बड़े अच्छे हैं। तो धर्म उसमें आज्ञा का बात हमें करते हैं, तो आप कल महात्मा जो बने नए, वो आज दूसरा दिन हुआ है आपका। इसलिए कल आपको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद आप चले गए, भोजन लिया, रात को सो गए, उसको मना नहीं की थी आपको। धर्म के वड़े ऐसे नहीं होते हैं, अभी खाना नहीं खाना, अभी सोना नहीं, ये ज्ञान में ही रहो, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे अभी इतना ज्ञान लेते हो, इतना अपूर्व परम अंतिम सा ज्ञान लेते हो और यहां से चले जाते हो, बैठो यहां बैठे रहो। तो क्या करें, सब बैठे रहे, लेकिन अंदर आवाज आती है बहुत, चू चू बोलता, बहुत आवाज आती है अंदर से।
क्या करे? अरे तब करो, लो सब अब तब करवाते थे, अब तो स्वयं होता है। तो मानते क्या है? जो धर्म हम करते हैं इसलिए तब भी कर सकते हैं। लो सूरज जी, ऐसा सिखाया आपने? था आप फोर्ड कंपनी वाले, देख कैली होल लाइफ उसमें कैरियर गई, ही टुक सैलरी, बोला ऐसा ही था। फोर्ड कंपनी बड़ी अच्छी है, दे गिव स्टिल नाउ। सच्ची सच्ची ऐसे था साहब, ऐसा धर्म करते हैं इसीलिए तब भी करो। क्या साहब? जमेश आनंद जी, ए कमलेश आनंद जी, अब सच्ची बात बताओ ने, बोलो सच्ची बात बताओ, बोलो, लो वो साथ में लो, बोलो जरा, हमें समझाओ। ये दादाजी का ज्ञान नहीं मिला, उससे पहले तो ये तब करने की बात ही होती थी। रखो, बोल बोलो। और ज्ञान मिलने के बाद भी वही एकोज यही रहा करते हैं, वही रहा करते हैं। लेकिन वो एकोज में से निकल जाना है हमें, और उसका सही अर्थ पाना है कि आज्ञा वही धर्म किस ढंग से है। हमें मुक्ति पाई है तो पीछे आज्ञा से हमको बांधते क्यों है? तो हमने कहां बांधा आपको? आपकी निंद्रा छीन ली, आपका भोजन छीन लिया, नहीं आपको घर को जाने में मना फरमाया, नहीं जयंती भाई ऐसा बोलते मना फरमाया, ऐसा किया नहीं दादाजी। लो उत्तम जी बोलो ना। पूरी स्वतंत्रता के साथ में, दिखती हुई स्वतंत्रता के साथ में अंदर की स्वतंत्रता खोई। अर्थात जो हम आजाद तो है लेकिन मानते नहीं और हम जानते नहीं ने, तो कैसा? तो आपको मालूमात करवाया मालूमात कि आप इंडिपेंडेंट है। देखो, जो डिपेंडेंसी माने हुए उसमें इंडिपेंडेंसी ढूंढते रहते थे, वो गलत रास्ते पर सेंट्रीफ्यूगली घूमते रहते थे। कैसे घूमते रहते थे? सेंट्रीफ्यूगली। सेंट्रीफ्यूगली कैसा घुमा जाता है? बोल क्या ली? और बड़ा और बड़ा और बड़ा और घूमते जाओ, घूमते जाओ, तो लाइफ सब कुछ ऐसा बनता है। समझी? ऐसा ऐसा करते हैं। क्या करें? उसमें ऐसा कौन वाइज होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल का अगेंस्ट होके सेंट्रीपिटल हो जावे। वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। वो तो जब फ्लड आता है तो उसके सामने जाना, इसी बात हो गई। इज इट पॉसिबल टू स्विम अगेंस्ट द फ्लड? इज इट? नो, एंड यू कैन। साहब, और टाइड भी आती है और फ्लड भी आ जाता है, तो अगेंस्ट जाओ। तो अरे क्यों? तब करो। वाह, तो मर्दे का सौदा करवा देते हैं उनको। सूरज जी, तो यहां ये आज्ञा वही धर्म है, और आज्ञा उसको धर्म बोलते हैं, और तीसरी चौथी आज्ञा को तब बोलते हैं। उसका सही अर्थ है अभी समझने, हम समझे? बोलो, अभी समझे हम? क्योंकि आपको आज्ञा दी गई थी, आप समझे? सुनते हैं क्या? हाँ, आपको आज्ञा समझाई थी ने? कितनी आज्ञा दी थी? हाँ, 5। 5। वहां 5 बोलते हैं। आप लोग भाई लोग बोलो, कोई कितनी? 5। पहली 2 आज्ञा थी कि नहीं? बोलो बहन जी, 2 थी? बोलो। चलो एक उधर से एक आ जाओ।
हाँ ये एक दो बस हो गए। हाँ, बस ये सूरज आप जाओ, आ जाओ, सूरज जी, जिसने आप आ जाओ। कल ज्ञान लिया है वो आगे बस, बैठ जाए। एक बस। हाँ, अभी मुझे बताओ, पहली दो दी थी, बोलो तो उसको हाँ। पहली और दूसरी को धर्म बोलते हैं, वो हम समझाते हैं आपको। अभी पहली दूसरी को धर्म बोलते हैं, किस कैसी, किस ढंग से, किस ख्याल से, किस समझ से, कौन सी अंडरस्टैंडिंग से। चलो हम समझे, वो कर्ता भाव से नहीं है, नहीं। क्यों कि आपने तो सभी कर्तापन और कर्ता भाव से छुटकारा पा लिया है, अपनी सच्ची आजादी पाई है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं वो आपने कृपा से, ग्रेस से पाया है, वो आपकी खुद की उसमें मेहनत कोई नहीं है। आपका पुण्य का कैशियर चेक जरूर था, कैशियर चेक लेके खिस्से में साथ में फिरना वो कोई गुनाह नहीं है। सही है। लेकिन ऐसा चेक होना और बड़ा बड़ा पुण्य की निशानी है। तो वो कहां यहां तहां गुमराह हो जावे, ये आज का चक्कर जगत में, उसके आगे कैश हो गया आपका। ऐसा नहीं साहब, हो गया क्या? गुमराह तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। कोई भी मिलता है तो मैं डिस्काउंट करवाऊं, मैं दे देता हूं, अभी क्या बात करते हो? नहीं होता है साहब, होता है। बाहर तो बहुत बंद। ए साहब सुनते हो? नहीं, नहीं सुनते हो? समझ में आता है? वो बहन को कौन है समझ वाली? एक दो बैठो, पढ़ी लिखी। हाँ, पढ़ी लिखी एक दो आओ आगे। आगे आ जाओ, ये साइड पे थोड़ा सामने दिख सके नहीं, इस तरह से आगे आ जाओ। पकड़ो ना, पड़ी जाए। चलो, तो पहली और दूसरी आज्ञा वो उसको धर्म बोलते हैं। धर्म किस प्रकार से? तो पहली आज्ञा कौन सी दी हम आपको बताओ? हाँ तो बोलो, पूरी बोलो, पूरी जैसी दी वैसी ही बोलनी चाहिए। हाँ बोलो। एक माइक वहाँ भेजो, एक माइक दे दो, अभी कोटलेस वहाँ जाने दो। एक माइक दो जल्दी। एक दूसरा निकालो, एक दूसरा यहाँ निकाल के यहाँ दे दो, जल्दी दो। चलो बोल दो, जोर से बोलो, जोर से। व्यवहार की दृष्टि से मैं सीता हूँ। वे पहली आज्ञा हो गई। पहली आज्ञा, पहली आज्ञा को क्या बोलते हैं मालूम है? उसको गाड़ी के आगे घोड़े को रखा, ऐसा बोलते हैं। गाड़ी के आगे घोड़े को रखा है, कि पीछे रखते हैं आगे। आप जानते हैं कभी भी पीछे नहीं होता, हॉर्स बिहाइंड द कार्ट कभी भी नहीं होता, बिफोर द कार्ट। लो क्या ली, क्या समझते थी? उसमें कोई कितना भी गुमराह करे, उसमें गुमराह नहीं होंगे। तो आज्ञा सही दी कि नहीं? बोलो सुरेश जी, सही तो धर्म बन गया कि नहीं? बन गया। पहली आज्ञा धर्म बन गई। अरे उत्तम जी बोलो ना साहब, मुझे शक्ति, मुझे पावर दो थोड़ा। हाँ तो बोलता जाओ। पहली आज्ञा धर्म हो गई। जयंती भाई साहब बोलो ने। हाँ दादा। ए जयंती भाई साहब जोर से बोलो, खूंखार के। हाँ है, हो गए ने? हाँ सर। तो इसीलिए दूसरी आज्ञा धर्म से होनी ही है। पहली हुई तो दूसरी होगी, क्योंकि गाड़ी घोड़े को फॉलो करती है। गाड़ी घोड़े को फॉलो करती, क्या? गाड़ी घोड़े को फॉलो करती है। हाँ, अगर घोड़ा सही वफादार है तो क्या गलती कर दी मैंने? बराबर है? गाड़ी को ले जाता है। क्या करूं, गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है साहब। घोड़ा तो वफादार कैसा होता है? कंबोडिया का घोड़ा। हाँ? चेतक, राणा प्रताप का। झांसी की रानी का महाराणा प्रताप का चेतक। वो तभी वो गाड़ी धड़ 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 जाती है पीछे। तो शुद्धात्मा की दृष्टि इतना प्रभाव से बहुत काम करती है साहब।
अगर व्यवहार दृष्टि से आप कौन है? बोलो। हाँ अरे बस बोलने का माइक धुन है। वो साइड पे। बोलो, जोर से बोलो। हेलो, मैं बिहार दृष्टि से श्याम सुंदर। अरे जोर से बोलो, वहां सुनाई मैं बिहार दृष्टि से श्याम सुंदर काबरा हूँ। बोल। व्यवहार दृष्टि से मैं श्याम सुंदर हूँ। श्याम सुंदर हूँ। व्यवहार पूरा वाक्य बोलो। मैं बिहार दृष्टि से श्याम सुंदर हूँ। हाँ, उसको पहली आज्ञा बोलते हैं। अभी आएगा। हाँ आया। आगे। बोलो। मैं बिहार दृष्टि से श्याम सुंदर हूँ। उसी को ही धर्म बोलते हैं। उसी को ही धर्म बोलते हैं। वो पहली आज्ञा है। वो पहली आज्ञा है। क्यों? क्यों? क्योंकि 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 अभी मैं व्यवहार दृष्टि से सुंदर सिंह हूँ। मैं बिहार दृष्टि से श्याम सुंदर हूँ। पहले तो मैं खुद ही सुंदर सिंह था। पहले से ही मैं नहीं, सुंदर पहले 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 व्यवहार दृष्टि से नहीं थे आप। थे? पहले नहीं थे। अभी तो अभी आज्ञा से है आप। अभी आज्ञा से हैं। आपको भी मालूमत नहीं हो गई पूरी के आज्ञा से है, तो इतना सिंसियरिटी कर लेनी है। करेंगे करेंगे। अरे ये आज्ञा दी ना हमने, तो बंधन कर दिया आपको। नहीं हाँ? नहीं बंधन। आपका घर का व्यवहार बंद कर दिया मैंने। नहीं किया। इतना ही बताया कि व्यवहार दृष्टि से रहो, सब व्यवहार ऐसा न करो, इतना ही बोला ना। हाँ जी। तो धर्म बना के नहीं आपका बन बन गया। गया आपका व्यवहार को कहाँ दिक्कत नहीं आने दे, उसको धर्म बनाया ना भाई। बना दिया। उत्तम से बोलते नहीं, उत्तम शाह। हाँ, बहुत बढ़िया। जी दादाजी। उत्तम साहब बोलो ना साहब, क्या करे पर। लेकिन ये सब समझते हैं, सारा विश्व, सारा भारत। आज्ञा तो ये क्या है? आज्ञा कमांड करते हो, ये थोड़ी 10 कमांडमेंट्स है, नहीं। वो तो प्रेम की कमांड है। प्रेम कमांड है। क्या तो क्या बोलते हो? प्रेम की कमांड महीना हृदय से आती है, आपके हृदय में चली जाती है, और आप खुद ही आपकी आज्ञा में आप आ गए। आ गए। उसको धर्म बुलाया। आप समझे? हमारी आज्ञा में नहीं है आप। बहन समझिए, आप समझे। आप खुद आपकी आज्ञा में आए कि आप समझ गए कि अभी मैं व्यवहार दृष्टि से क्या बताया नाम? सीता देवी। सीता देवी हूँ। नहीं तो पहले क्या था? मैं खुद सीता। मैं खुद सीता हूँ। लो, तो मैं खुद श्याम सुंदर हूँ। वाह, खुद खुद और खुद होके खुदा भी बन जाती। क्या भी बन जाता। कमाल। कब खुदा बनती और कब नहीं, क्या क्या नहीं करती। अरे रे, तो अभी सच्चा खुदाईपन आपके अंदर खुला आपो-आप होता जाएगा। गाड़ी तेज से आपको आप इजीली फॉलो होती जाएगी। क्यों? कि आपको प्राप्त हो गई है, लेकिन वो कृपा से हुई है। इसलिए आज्ञा धर्म से आपको वहां रहना जरूर है। कि भाई दूसरी आज्ञा कौन सी? बोलो साहब सुंदर। मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आज्ञा बोलो। और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सीता देवी बोलो। निश्चय की दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बस ये दूसरी आज्ञा। दूसरी समझ गए? ये दूसरा धर्म नहीं है। ये दोनों इकट्ठे होके घोड़ा और गाड़ी एक ही धर्म है। अगर अलग अलग धर्म हुआ तो दोनों गुमराह हो जाएंगे। हाँ दादाजी। क्या बोलते हो? हाँ अब समझो, साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए धर्म बताया। उत्तम सा गाड़ी और घोड़ा। नहीं समझे? एक थोड़ा सा भी अंतर पड़ा, खलास हो जाएंगे। बिल्कुल लगाम इधर तिधर कुछ नहीं होना। व्यवहार दृष्टि से मैं श्याम सुंदर हूं। ओ कहीं भी व्यवहार दृष्टि से मैं श्याम सुंदर हूं, वहां शंकित भाव से कहा न होनापन कभी भी न होना चाहिए। अभी समझ गए? बिल्कुल। जी दादाजी। अभी व्यवहार दृष्टि से ही हूं।
अभी बिहार दृष्टि से हूँ। जो बने हो, लेकिन वो अंदर समझने की बात बने। क्या कौन सी बने? समझने की बात। तो आज्ञा धर्म कौन सा है? समझने का। समझने की। बोलो सीता देवी, बोलो। आज्ञा धर्म समझने का है। इसलिए उसको धर्म बताया। धर्म समझने की बाबत होती है साहब। सीता देवी समझी? बोलो। समझी। करने की नहीं, समझे। करने की नहीं, समझने की। हाँ, समझने का। और समझना हृदय से होता है। बोल। समझना हृदय से होता है, मत्था से नहीं। बोलने मत्था से नहीं। हाँ, मत्था से तो वो करने वाला धर्म होता है। हाँ। बोल। ये हृदय की बात है। अरे ये तो पक्की हो गई। लो, ये तो हमारी गुरु की गुरु बन गई अभी तो। अच्छा, ऐसा हमें चाहिए। हाँ, ऐसी चाहिए सीता देवी। श्याम सुंदर समझे? ऐसा चाहिए। हमसे बढ़कर होना चाहिए आपको। आपको लगे हमने आगे दी, हमसे बढ़कर हो जाओ। समझे? कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे से भी बढ़े। कोई नहीं चाहता। मेरा बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है बोलेगा। सब चाहते हैं। नहीं नहीं, कौन बोलता है? ये माए सब है, माए अच्छी है, पर बाप पूछो बाप को। वो तो अंदर से जानते हैं। दिखावा करेंगे, अंदर बोलेंगे घरे तू जानती नहीं। वो कब उनकी कमान छटकेगी, मुझे उसके रखने दे। ऐसा है। लेकिन जो हृदय के धर्म, हृदय से आज्ञा जहां आती है, वहां उनसे भी बड़ा हो जाओ आज्ञा देने वाले से। आप खुद की आज्ञा खुद ही पालन करते हो। आप अभी समझ गए? जी दादाजी। इसीलिए पहली और दूसरी आज्ञा वो धर्म ही है। ये सही उसका अर्थ बताया आपको। अभी समझ गए? पक्का समझ गए। ये त्रिकार सिद्धांत है, लेकिन कार के अनुरूप होने के कारण आज इतना आपको समझाया जाता है। नहीं तो गुमराह होने का बहुत स्कोप है। समझ जाओ। इतना अमूल्य ज्ञान मिलने के बाद भी पूरा समझो आज्ञा की महत्व। पूरा परमात्मा पद आपके हाथ में है। समझे? वो घोड़ा इधर इधर कहां भी जाने वाला नहीं है। वो पूरा चेतक बोलो, क्या भी बोलो, लेकिन मोक्ष अपना शिखर सर कर लेगा सिद्ध गति का। इसीलिए उसको धर्म बताया। और शिखर गति का उस शिखर गति प्राप्त करेगा सिद्ध गति की। वो कौन करेगा? शुद्धात्मा खुद उसको सर करने की जरूर नहीं। शुद्धात्मा स्वभाव से ही सिद्ध स्वरूप है। क्या बताया? शुद्धात्मा स्वभाव से ही सिद्ध स्वरूप है। इसीलिए आपको हमने बुलाया था ज्ञान में। अब मालूम है? श्याम सुंदर जी, जी नहीं, फिर से बोलाऊं? बोलो ने। हाँ जी। तो बोलेंगे आप लोग। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। बुलाया था? नहीं बुलाया था। तो बोलने से होते हो? जानने से। एक मालूमात हुई आपकी, आपका अंदर का स्वरूप। तो इसलिए आज्ञा से देना पड़ा है आपको धर्म हाथ में। आप हुए तो आपके हाथ में देना पड़ेगा ने। मैं मेरे हाथ में रख के दूं तो कैसे चलेगी बात? कैसी चलेगी साहब? बराबर नहीं काम भी कैसी करेगी? समझो, उसके पर वचन बल होता है। हम जहां भी हाजिर है, हम किसी भी कोने में विश्व के हुए, फिर भी आपको याद करो ये आज्ञा कैसे बल मिलता है धर्म में आपको। अब स्वयं से आज्ञा देने वाला पुरुष कौन है? समझो। अब समझे? सीता देवी शुद्ध आत्मा ही देने वाला। हाँ, तो अभी बड़ी हो जा। हाँ? दादा भगवान। तो पतिदेव कौन है? पतिदेव है कि नहीं? शुद्ध आत्मा। पतिदेव शुद्धात्मा है, लेकिन पतिदेव तो है कि नहीं?
तो क्या बोलेगी? पतिदेव बोल बोल करके चिल्लाएगी नहीं ना? भाई, अंदर से समझेगी ना? व्यवहार की दृष्टि से पति देव अरे है। वाह वाह, व्यवहार की अरे दृष्टि वाह 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 वाह, कमाल की है। और निश्चय की दृष्टि से शुद्धात्मा अंदर से जानेगी, जाने समझेगी। अरे वाह, तो तेरा व्यवहार तो राम सीता जर सही का हो गया। अरे वाह, मजा आ गई। हाँ, आपके पतिदेव कौन है? कहाँ है? यहाँ नहीं है, हाँ? यहाँ नहीं है। आया नहीं है। अच्छा अच्छा। श्याम सुंदर जी आपकी है? हाँ आए हैं, हाँ, नहीं आई? आइए आए हैं, आए हैं। आए हैं। नाम बोल सकेंगे हाँ बोल सकते हैं। क्या? सुलोचना देवी। सुलोचना जी, सुलोचना। अरे कहाँ है सुलोचना? अरे कहाँ? नहीं आई? आइए क्या दिखाई नहीं देती? खड़ी हो जाओ। मुझे दिखाई नहीं देती। अरे यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कल बैठी थी ना? हाँ आए थे। अरे ऐसे कर दे, देखो आगे आ जाओ सुलोचना जी। सुलोचन आगे। से सुलोचन पाया है। सुलोचन, सुलोचन। ये ज्ञान से सुलोचन प्राप्त हुए। हाँ साहब, ज्ञान के बिना सुलोचन होते ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो सुदर्शन प्राप्त हुआ। हाँ, सुदर्शन, सुदर्शन प्राप्त हुआ। लोग कृष्ण भगवान का। तो हुआ ही ना, तो वो तो मजा आ गई उनको। तो अभी कहीं कहीं यहाँ जो सीता देवी के साथ बैठेंगी तो आपको देख के ही सब शर्मा जाएंगे। बैठो, श्याम सुंदर जी शर्मा जाएंगे। बैठो। आप इच्छा करती है कि श्याम सुंदर जी आपसे शर्माए? बोल। नहीं। नहीं। इसीलिए तो आपको धर्म पत्नी बोलते हैं वो, कि मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन आप चिल्लाते हैं इसे कि अंदर से समझते हैं? अंदर से समझते हैं। अरे वाह, ये तो सब पक्के हो गए। पक्के हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए, बिल्कुल। तो क्यों धर्म पत्नी जानते हैं? आपको आज्ञा धर्म से च्युत नहीं होने देंगे। क्या बताया? आज्ञा धर्म से च्युत नहीं होने देंगे। च्युत महीना स्थान से भ्रष्ट नहीं होने देंगे आपको। आज्ञा धर्म का क्या? आज्ञा धर्म से भ्रष्ट नहीं उसका होने स्थान से बने ही रखेंगे आपको, बनाए रखेंगे। वो इसी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी किसको बोलते हैं? पत्नी पतन न हो ऐसा धर्म में रखे। क्या बताया सूरज जी? तो नहीं तो धर्म पत्नी का धर्म क्या? धर्म पत्नी ऐसा उपाधि लेके बैठी है तो पति देव ने दी है ना। और सामान्य पति नहीं है, वो तो पति देव है। पति देव है कि नहीं सुलोचना जी? है। लेकिन अंदर से न नहीं, अंदर बाहर दोनों तरफ से ही है। वो बच्चे को तो बोलेगी ऐसे, बच्चे को भी बोलेगी। अरे वो तो नाटक है, वो खाली बाहर से पतिदेव है समझना है, बोलना नहीं। लेकिन पतिदेव कभी ऐसा हो जावे गुस्से, अरे पतिदेव इतना गुस्सा क्यों करते हो, ऐसा बोलना। ठीक है ना? ये हमारा उत्तम साहब से समझाते हैं हमें। ये आज्ञा पहली और दूसरी आज्ञा धर्म है, वो तो बड़ा शास्त्र है, बड़ा स्क्रिप्चर है। जितना उसमें आप कहो इतना कम है। आप समझे क्यों? कि प्रत्येक प्रकृति, एक एक प्रकृति में सिद्धात्मा है। वही सिद्धात्मा अपना सर्वज्ञ पद खुला कर सकता है, यही आज्ञा धर्म से। बोलो। लेकिन ये केवल दो आज्ञा धर्म से नहीं बनेगा, आपको इतना ख्याल करो। सुलोचना समझ गए? ये खाली पहली और दूसरी आज्ञा से काम नहीं बनेगा। श्याम सुंदर जी नहीं बनने वाला काम। सीता देवी जी समझी? आप भले आपको व्यवहार दृष्टि से सीता देवी जी समझो, आप समझ गई? इसीलिए तीसरी और चौथी आज्ञा दीपकानंद जी साहब ने आपको समझाई थी कि नहीं? समझाई थी। बोलो। समझाई थी। तो पहली और दूसरी आज्ञा जो हृदय की समझ से हमारे समझ में हमेशा पक्की बनती रहे,
इसीलिए हर हमेश का जीवन में, हर हमेश का व्यवहार में हम यही दो ही आज्ञा से हम बनते रहे आराम से, साथ साथ में बाहर सभी व्यवहार में, सुबह से रात्रि का निद्रा टाइम तक और निद्रा समय में, निद्रा के समय में, सभी 24 घंटों निरंतर। इसीलिए आपको आखिर में आपने महात्मा पद पाया। इसीलिए वो पद संभालने के लिए ये धर्म स्वरूप संभालो, जिससे वो धर्म स्वरूप आसान सा बन जावे। आपको क्या बने? आसान सा बन जाए। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप वो आप बना रहेगा। जैसी आपकी श्वसन क्रिया आप वो आप बनती रहती है। आप समझे सीता देवी जी? अपने श्वसन श्वास चलाना पड़ता है खुद को? नहीं। सुलोचना जी, नहीं चलाना पड़ता है? नहीं चलाना। जो होता कि नहीं, अगर चलाना पड़ता तो निंद्रा में श्वास चलाने के लिए हम सोई नहीं सकते, हम जागते ही रहने पड़ता। शाह साहब क्या बोलते हैं? जागना पड़ता है, बहुत हैरान हो जाते हैं हम। हैंडल देना पड़ता है। अरे बहुत हैरान हो जाते हैं साहब। हैंडल से अगर हम श्वास चलाना होता तो उत्तम साहब क्या बोलते हो आप? सो जाओ, ऐसे ऐसे करते हो, सो जाओ। बोलो ने। हाँ? तो ऐसी ये दो आज्ञा के धर्म है वो समझने, ऐसी ही बात है, बस समझ लो आप। और इसीलिए आपको दैनिक क्रिया नहीं दी है करने की, वो जो विधि बताई कि रोज दिन में एक दफे कर लो। अगर सुबह जल्दी समय थोड़ा सा निकाल दो, आधा घंटा सभी काम में लग जाने के आगे, तो वो निश्चय व्यवहार चरण विधि आपको दी है, वो आज्ञा देने वाले आपके समक्ष तो है ही नहीं। तो चित्र पर रखो अपने, आपके अंदर स्मृति पट के आगे हम रखे, या दादा भगवान का जो भी जैसा भी आवे उसको निधिध्यासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निधिध्यासन बोलते हैं। निधिध्यासन, मैना प्रगट ज्ञानी पुरुष का आत्मा वो ही मैं हूं, उनका आत्मा वो ही मेरा आत्मा है। क्यों कि प्रगट ज्ञानी पुरुष का आत्मा सर्व शरीर की सर्व मालिकीपन से, मन वाणी और काया की मालिकीपन से संपूर्ण मुक्त हो गया है। इसीलिए वो आप स्मृति पट में रखे निधिध्यासन में, और जैसे ढंग से आपको रहे, आपके स्मृति में अंकित हो गया हो, इस ढंग से आपको रहेगा। आस्ते आस्ते आस्ते, एकदम तो नहीं आएगा, जैसा आवे उसमें प्रयत्न नहीं करना है। निधिध्यासन का मतलब क्या? वो क्रिया वाला नहीं है, वो सहज ध्यान में लेना, और जैसा भी रहा बैठ जाओ। फिर अच्छा ऐसा आच्छादित वाला रहा तो ऐसा ही रखो, स्पष्ट नहीं दिखे तो ऐसा ही रखो, कुछ नहीं दिखे तो ऐसा ही रखो, पीछे आहिस्ते 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 दिखाई देगे, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। क्यों कि वो क्रिया का निधि मार्ग नहीं, निधिध्यासन साहजिक है, जैसा श्वसन चलता है। जानते नहीं लोग, निधिध्यासन सबसे इजीएस्ट वे के जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप से ज्ञानी पुरुष है, और वही हमेरा स्वरूप है, अगर हमें मालूमात हो उनसे कृपा से तो वही हो जाना। तो उनका हर एक दिव्य क्रिया जो भी हो, कोई भी क्रिया अपने स्मृति पट पर अंकित हो गई, उसका निधिध्यासन स्वरूप रहना, उसके और वो रहने से वही ज्ञानी स्वरूप आप बन जाते हैं। आपको ज्ञानी पद मिला आत्मज्ञान प्राणे से, लेकिन आप ज्ञानी कहलाएंगे नहीं, अर्थात बाहर आप कोई नहीं कह सकते। क्यों? आपका व्यवहार पूरा बाकी है। अब समझ गए श्याम सुंदर जी? समझ। सुलोचना देवी आप हाँ समझी? जी समझ गए। सीता देवी आप समझी? व्यवहार बाकी है या नहीं? है, अब खाना खाएगी या नहीं? खाएंगे। सोएगी या नहीं? बच्चे के साथ रहेगी या नहीं? सास का धर्म बजाएगी या नहीं? बोलने मनाएंगे, धर्म पत्नी का धर्म बजाएगी या नहीं? जाएंगे। तो पीछे ये पूरा व्यवहार बाकी है। कौन सा व्यवहार कम बाकी नहीं बोलो साहब?
बोलो ने श्याम सुंदर। सब बाकी है। आप जो मंदिर में जाते हो वो मंदिर में जाने का व्यवहार रुक गया? नहीं रुका। वहां भी जाएंगी, अभी समझ गई? लेकिन कैसी जाएगी, कौन सी दृष्टि से? हाँ, लेकिन बोलना जरूर है। सीता देवी बोलो। नहीं। हाँ, बोलेंगे तो कच्चा बन पड़, व्यवहार कच्चा पड़ जाएगा। तो घोड़ा कच्चा पड़ा तो गाड़ी हिल जाएगी, तो धर्म हिलेगा। धर्म को तो रखो अपनी जगह। आगे के गुरुजी अगर है तो हैं? आगे के दृष्टि दी है ने, गुरुजी है तो दृष्टि दी है ने। हम नहीं जाएंगे तो सोचेंगे ये कहाँ, उसमें कोई कहाँ से फंस गया है, ऐसा सबके साथ बात करेंगे और बात में हमारे पास भेजते रहेंगे कि क्यों नहीं आता। तो हमें तो व्यवहार दृष्टि से है सब, और उसका उपकार मानना है कि आपका उपकार से हमें ये अंतिम पद ही मिल गया। तो अंदर से मानना है ने। हाँ। तो बाहर से अगर गुरु पूर्णिमा भी हो, सब जाते हैं, तो श्याम सुंदर आप नहीं आएंगे? चलो आपके भी गुरु तो है नहीं। अरे भाई जरूर, क्यों नहीं, पर एक मुझे बहुत अर्जेंट काम है, फिर जरूर दर्शन तो कर आऊंगा। चलो कमल जा। तो जाके व्यवहार दृष्टि से हम नमस्कार करो। व्यवहार दृष्टि में किसी को भी ऐसा नमन करने में कुछ दिक्कत आती है? नहीं। बोलो। नहीं। नहीं आती। सुलोचना देवी क्या बोलती? नहीं आती। जब पक्का अगर नमन नहीं करे, व्यवहार दृष्टि से बोलता हूं, तो क्या बोला जाएगा उसको? अक्कड़पन। क्या बोलेगा? अखड़पन। तो अच्छा, वो तो अच्छा है ना? नहीं, अच्छा नहीं। लोग तो पसंद करते हैं ना? नहीं करते हैं। बस समझ जाओ। तो कहां भी आप जो नमन करता है वो सबको प्यारा ही बनता है कि नहीं? बनता है। सीधी बात है। तो व्यवहार दृष्टि में ही बनता है, इसीलिए तो उसको धर्म बताया। हाँ, मच्छर काटता है तो मच्छर को नमन नहीं करते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि हमने एक काटने का हमारा आगे प्रैक्टिस की थी, तो आज ये निमित्त आ गया। देखो ये फाइल आ गई। ये फाइल से कुदरत की व्यवस्थित शक्ति के कारण ये निमित्त से हम काटे जाते हैं। वो निमित्त से काटे जाते हैं। कुछ कांटा तो चाहिए ना, कांटा ना हो तो कांटा आएगा निमित्त, और मच्छर आया तो मच्छर, आदमी आया तो आदमी। वो तो है ही, तो है निमित्त, तो है ना। निमित्त तो होना ही है, कोई भी जीवंत हो या न जीवंत हो। जीवंत हो सबकी नजरों में आ जाता है, काटा हो तो किसी की नजर में नहीं आता। उसको डांट देते, अरे कहां से आ गया, पर ये लल्लू भाई आपके बीच में क्यों आए? तो पीछे इतने सब लोग गए थे, तो आप ही क्यों आए? किसी को नहीं आया, इतने लोग आते जाते थे, आपके ही पांव में क्यों लगा? श्याम सुंदर जी समझते हैं? जी बोलो। जी समझते हैं। नहीं नहीं समझते हैं। हाँ, सुलोचना देवी। हाँ समझते। हाँ, हिसाब समझी ने। एक व्यवस्थित शक्ति सभी को, जो जीवंत है, जीवंत को न जीव है उसको किसी की ढंग से हमारा जो हिसाब है ना, हिसाब चुकवा देती है कि आप हिसाब से अभी मुक्त हो जाओ। वो तीसरी आज्ञा है, कौन सी? बोलो ने श्याम सुंदर। व्यवस्थित शक्ति। नहीं, ऐसी पूरी बोलो, कैसी दी गई थी? जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। बोलो। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। सुलोचना देवी जी बोलो। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। सीता देवी जी बोलो। सब साथ में बोलो। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। हाँ, ये तीसरी आज्ञा है। लेकिन हमें इतनी आसानी से ये रहने वाला नहीं है। ये धर्म आसानी से रहे, जैसा श्वसन क्रिया आसानी से बनती रहती है, उसे हैंडल नहीं मारना पड़ता। इसीलिए तो ये निश्चय व्यवहार चरण विधि दी कि जिसमें रिलेटिव व्यू पॉइंट से पढ़ा जाता है और रियल व्यू पॉइंट के प्रकाश में पढ़ा जाता है। आपको मालूम पड़ा, समझाया था? हाँ समझे। आपको समझाया था? हाँ। हाँ। तो दोनों व्यू पॉइंट, दोनों दृष्टियां साथ में रही।
रही बोलो। रही जी। पढ़ने वाला, रिलेटिव, व्यवहार वाला। जो प्रकाश में पढ़ा जाता है वो रियल दृष्टि वाला, निश्चय दृष्टि वाला। रहा कि नहीं रहा। हाँ, तो आज दूसरा दिन है। रात को आप सो गए थे ना, तो शुद्धात्मा भी आपके साथ सो गए थे या नहीं? सीता देवी जी क्या बोलती है? सुलोचना देवी जी? रात भर शुद्धात्मा ही ध्यान में रही। अरे श्याम सुंदर जी को मत बोल देना, आपने सुना नहीं ना उनका, तो आपका स्वतंत्र बोलो। क्या आप सो गए थे? शुद्धात्मा सो गए थे? हम सो गए थे। हाँ? हम सो गए थे। तो शुद्धात्मा जाग रही थी। तो सारी रात आप नींद में सो गए श्याम सुंदर, और शुद्धात्मा चलता ही रहा। वो बोलती है ना सारी रात। तो क्या बना उसमें मालूम है? ये आपको आसान सी रीत बताई गई थी कि ज्ञानी पुरुष सारा जगत रात्रि में निद्राधीन रहता है, तो कृष्ण भगवान रात्रि को जागृत होते हैं। सभी की रक्षा, तो खुद की रक्षा पहली। अगर खुद की रक्षा नहीं तो दूसरों की रक्षा क्या करे? मीनेश आनंद जी, बस तो करनी है कि नहीं? वो खुद की रक्षा करने के लिए जब वो रक्षक है, उसको बंदूक लेके ऐसा ऐसा करना पड़ता है, तो हमें जागृति से और तप स्वरूप से रहना पड़ता है। तो क्रिया तो है ही नहीं। क्रिया है तो अब शुद्धात्मा रही, उसमें क्या मेहनत पड़ी? सुलोचना देवी जी बोलो। नींद आ गई थी। मेहनत नहीं पड़ी ना? नहीं, शुद्धात्मा हुआ ऐसा रहा ने। हाँ, और मेहनत से शुद्धात्मा को कैसे पहचाने, कैसे करे? नहीं बोलो तो ऐसा अपना स्वभाव से रहा ने। स्वभाव से रहा, नींद आ गई थी, मेहनत से नहीं रहा ने। मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा। ऐसे रात को यही लगा शुद्धात्मा बोल। अच्छा, और नींद भी सहज से आ गई ने। जो दोनों सहज से आ गई, ये क्या? ये धर्म का प्रताप है। अभी समझे श्याम सुंदर? ये धर्म का प्रताप। हाँ, कल आपने समझा और इसी ढंग से आपने उसका अनुसरण किया। अनुसरण महीना जो दो दृष्टियां मिली है, उसकी तरफ ऐसी ढंग से रहना कि भाई रात को सोने के टाइम, जिस टाइम में आप सो जाओ, लेटने के समय जैसा ही श्याम सुंदर लेट जाता है तो लेट गया, तो आंखों बंद कर दी, किसी को डिस्टर्ब न हुए, ऐसा खुद को सुन सके। इतने ही छोटे आवाज से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी रटन करके वो श्याम सुंदर निंद्रा में लेटते जाता है। तो श्याम सुंदर की निंद्रा बिना मेहनत वाली आती है साहब। तो जिंदगी में आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, इसी निंद्रा आपको अनुभव में होंगे। बोल होई कि नहीं? होएगी। कब सुबह हुई मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ी। तो अच्छी लगी ने? अच्छी लगी। आपको? अच्छी लगी। सीता देवी जी को अच्छी लगी ना? तो इनाम तो देती नहीं हमें कुछ, हमें आज्ञा देने वाले, हम तो क्या इनाम देने को आई? तो आप यहाँ इकट्ठे हुए इनाम, हमने बोला था कि आओ बात करो हमसे, आपको क्या अनुभव हुआ? तो सुबह निंद्रा से जागृत कौन हुआ? सुलोचना देवी जी, शुद्धात्मा या सुलोचना देवी जी? सुलोचना देवी है? सुलोचना देवी ना। निंद्रा में से जागृत कौन हुआ? शुद्धात्मा। मैं, आप तो पति देव है, तो आपको रक्षण करना है उनका। चलो बोलो। शुद्धात्मा जागृत हुए और सुलोचना देवी जी सोती रही। सुलोचना देवी जी जागृत हुए, शुद्धात्मा के साथ में हुए। वो जागृत कैसी हो? तो निंद्रा में लग गई थी ना। निंद्रा से तो सुबह जागृत तो होते हैं। तो बस जागृत कौन हुई? आत्मा। हाँ? आत्मा नहीं, सुलोचना देवी। तो ऐसा बोलने, शुद्धात्मा कैसी बोली? शुद्धात्मा रात को लग रही थी। हाँ, वो तो चालू ही थी। पूरी रात उसकी माला सी लग रही थी ऐसे। वो ठीक है, पर निंद्रा में भी वो चालू रहा ने। निंद्रा में तो सुबह जागना है ही कहाँ? तो सुबह जैसा
सुलोचना देवी जागृत हुई तो जागृत होते ही मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा रहा। हाँ, ऐसे मन में वो ध्यान रहा तो वो भी स्वभाव से रहा और शुद्धात्मा भी अपने स्वभाव से निंद्रा से जागृत हो गई। निंद्रा देवी ऐसी नहीं है कि सुलोचना देवी को हमेशा सुला दे, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। उसको आराम देना उसका स्वभाव है, वो कुदरतीपन है, उसका धर्म है, उसका धर्म है साहब। हाँ धर्म है, पण ये पहली 2 आज्ञा का धर्म के प्रभाव से है। और जब इस जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति ही है, वो आज्ञा फिट करके हम रात्रि को सो जाते हैं, जैसा बताया ऐसा आराम से बनता रहता है। तो हम सोने वाले नहीं रहते, तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन कुदरतीपन से, कुदरती कायदापन से निंद्रा स्वभाव से ही आती है और स्वभाव से हम निंद्रा से जागृत होते हैं। ये व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता है। जगत नियंता, जगत महीना मैं श्याम सुंदर वो जगत। बोलो क्या? मैं श्याम सुंदर, मैं सुलोचना देवी वो जगत। बोलो। जगत नियंता से मैं सुलोचना देवी। नहीं, मैं सुलोचना देवी वही जगत। बोलो। सुलोचना देवी वो जगत, वही जगत। नहीं समझे तू? तो क्या श्याम सुंदर है इसीलिए ही जगत है? अगर आप सुलोचना देवी नहीं है तो तेरा जगत बताओ कहां है? बताओ। उत्तम शाह नहीं बताते। होना ही है ना, श्याम सुंदर मैं हूं तो सुलोचना देवी है ही ना। अरे मत दो, अपना तो कभी देना ही नहीं अभी। अब समझे? मैं श्याम सुंदर हूं तो सुलोचना देवी है ही ना। अगर मैं श्याम सुंदर ही नहीं तो जगत कहां? बोलो। मैं शेख चल्ली सरखा जगत बनाना पड़ेगा मुझे। बहुत बनाया, आज तक बनाता रहा मैं। मेरा बनाया हुआ जगत में मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे होने में और मेरी सलाह लेने को आए, क्या क्या हुआ, कुछ कुछ क्या क्या बन गया साहब। ये पूरी जगत बनती रही और जगत निंद्रा से जागृत हो तो जगत दिखता ही नहीं है। ये क्या साहब? वीरभद्र आए। अरे वीरभद्र, आपका जगत समझते हो ना? आप समझते हो ना? तो नमस्कार करो। तू सुनती रहती थी कि नहीं? आज्ञा धर्म कहाँ थी? तू समझती थी? समझी? पीछे पापा को समझाना पड़ेगा। समझाएगी? मामा को, पापा को नहीं समझाएगी? और वहां कौन बैठे हैं? हैं? बड़े पापा को अच्छी तरह से समझाना तू। जा वीरभद्र। तो तीसरी आज्ञा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति वो तप है, अर्थात जागृत होते ही मैं सुलोचना देवी हूं, मैं श्याम सुंदर हूं, मैं सीता देवी हूं। वो सब दिन काल में, जागृति काल में व्यवहार दृष्टि से आप रहेंगे। वह अगली आदतों के कारण मैं करने वाला हूं, ये सब बनता है, मेरे से बनता है। हिस्सा आपको आदतों से रहेगा, लेकिन आज्ञा हमारी लक्ष्य में रखेंगे कि भाई आज्ञा वही धर्म है और वो आज्ञा वो धर्म है, वो धर्म स्वरूप हमें न रखने दे, ऐसा दिवस का व्यवहार बनेगा। वो सभी व्यवहार में हमें तब बनना पड़ेगा, तब में रहना पड़ेगा। तो व्यवहार में, व्यवहार तो क्रिया स्वरूप है ही नहीं। कैसा क्रिया स्वरूप है? जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति के कारण वाला, मेरे से नहीं। क्या? जगत नियंता व्यवस्थित, मेरा माना हुआ मेरे से था वो नहीं रहा अभी। वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, मैं श्याम सुंदर जगत हूं ने। तो मेरा जो सारा दिन का व्यवहार है, घर, घर के बाहर, अंदर बाहर, जो भी माना हुआ था, फिर भी आज आज्ञा में आ गए
तो अभी वो उसका आदत से रहेगा, उसमें भी तप में ये आज्ञा है। सभी में जो बना वो आप उसमें सारा व्यवहार में, व्यवहार पूरा इस ढंग से व्यवहार में रहेंगे सारा दिन कि आपकी चौथी आज्ञा सही ढंग से ऐसे ही कुदरतीपन से बनती रहे। उस कारण तब से चौथी आज्ञा से रहना पड़ेगा। साहब कौन सी आज्ञा है चौथी? सभी फाइलों का समभाव से निकाल कर करना है। बोलो, सभी फाइलों का समभाव से निपटारा। फाइलों का समभाव से निकाल करना है। फाइलों का समभाव से निकाल करना है। 5 दफे बोलो, 4 दफे। फाइलों का समभाव से निकाल करना है। फाइलों का समभाव से निकाल करना है। फाइलों का समभाव से निकाल करना है। फाइलों का संभव से निकाल करना है। और तीसरी आज्ञा 3 दफे बोलना, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। 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 जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। बस ये देखो, ये तीसरी और चौथी आज्ञा दी। वो तीसरी और चौथी आज्ञा दिवस के दरमियान व्यवहार में आपकी आदतों के कारण आपका कर्तापन आपको रहेगा नहीं, लेकिन जैसी पड़गे आए रहते हैं तो पड़गे तो अपने बोले आज सीधे नहीं बोले आते हैं। तो आगे हम बोले थे, शेख चल्ली के विचार कर दिए थे, वो विचार के पड़गे आ रहे हैं आगे की जन्म में। अभी समझी सुलोचना? ए सीता देवी, तू समझे? आप श्याम सुंदर समझे? जी समझे। हाँ समझ गए। आगे आगे मन का स्तर पर, मन का स्तर पर, विचार का स्तर पर, विचार का स्तर पर, मैं और मेरापन से, मैं और मेरापन से जो प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्शन किया था, अपनी खुद की वीडियो ली थी, वीडियो भी थी, वही वीडियो उतर गई थी, उसकी सारी सॉफ्टवेयर जो जीवन दरमियान चले ऐसी मन से वाणी से और काया से अंदर से और बाहर से वैसी सॉफ्टवेयर दिन की निद्रा समय की और जागृत समय की सभी सॉफ्टवेयर सभी अवस्था में वो अवस्थित व्यवस्था में रही हुई अवस्थित हुई सॉफ्टवेयर व्यवस्थित में गई। वही व्यवस्थित है, व्यवस्थित गॉसिप गप्पा नहीं है। हमारी अवस्थित अवस्था में अवस्थित हुए ऐसी अवस्था का सॉफ्टवेयर वो व्यवस्थित में गया। लाइफ सॉफ्टवेयर साहब, और वही सॉफ्टवेयर किसी को प्ले आउट नहीं करना पड़ता। व्यवस्थित शक्ति ऐसी नहीं है कि वहां से केबल्स वगैरह ऑप्टिकल फाइबर ऐसा, ये हमारे सबके केबल जुटे हुए हैं अंदर से और बाहर से साहब। और हर एक स्टेशन है। बोलो साहब, आप जानते हो? हाँ, हर एक स्टेशन उनके स्वतंत्र केबल वाले, कोई केबल ऑपरेटर भी नहीं, लेकिन सबका ऑपरेटर वो खुद ऑपरेटर स्वयं नहीं है, वो तो एक तंत्र है। क्या है? तंत्र है, शक्ति है। तंत्र को शक्ति बोलते हैं, इसीलिए व्यवस्थित शक्ति बताया। और शक्ति किस ढंग से है? साइंटिफिक। क्या बताया? साइंटिफिक। बोलो साइंटिफिक। बोलो साइंटिफिक। तो साइंटिफिक है, इतना एक शब्द से नहीं चलता है। साइंटिफिक किस ढंग से? तो सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल भी समझ में नहीं आता तो किस ढंग से? तो एविडेंस से।
कांटा हजारों गए लेकिन लल्लू भाई को ही लगा। तो किसी को नहीं लगा, उनके पांव में लग गया थॉर्न। क्यों? सो मेनी पीपल पास बाय। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये व्यवस्थित शक्ति, तो व्यवस्थित शक्ति कांटा इस ढंग से नहीं स्वयं नहीं डालती कि लल्लू भाई को ही लगे। उन्हें लल्लू भाई पर राग और द्वेष नहीं है। आप समझती है? हाँ। बोलो ए सुन। हाँ, व्यवस्थित शक्ति राग नहीं करती। बोल। व्यवस्थित शक्ति राग नहीं करती और इसीलिए द्वेष भी नहीं करती। इसीलिए देश भी नहीं करती। जहाँ राग होता है वहां ही द्वेष होता है। जहाँ राग होता है वहीं देश होता है। और द्वेष होता है वहां ही राग का बीज पड़ता है। देश होता है वहाँ ही राग का बीज पड़ता है। ऐसा वृक्ष में से बीज और बीज में से वृक्ष ऐसा बना ही रहता है। बना ही रहता है। सेक चल्लीपन से जन्म जन्म में गुमराह हुए घूमने पड़ते हैं, भटकने पड़ते हैं। कई प्रकार के नाम रूप जाति के रूप के मूर्त स्वरूप कहीं मूर्तियां स्वरूप से भटकना पड़ता है। एक एक मूर्ति एक स्वरूप से कोई किसी को पसंद नहीं आती। क्यों आवे? कंटाल आ जावे ना। रूप तो बदलना ही पड़ता है साहब, बदलना पड़ता है। बहुरूपी किसको बोले? ये गुरुदेव बोलते हैं। ऐसा थोड़ा है, लेकिन हमारी आदत के कारण है। दिवस के दरमियान या रात्रि के दरमियान आपको बताया गया है, उस सीधा रास्ता बताया गया है, वो आप खुद ही आपके हाथ में रखा है। ये आज्ञा धर्मी आपका ही है। ज्ञानी पुरुष का तो वचन बल है, वो खुद उसका मालिक बन नहीं है। आपको बांधा नहीं है उससे, आपको आजाद किया है और आपकी आजादी सच्ची बनी रहे आपसे ही, उसीलिए वही आज्ञा आपको खुद दे दी। क्योंकि हम तो चले जाएंगे कल परसों, आप यहां रहेंगे आराम से, सब अपनी जगह चले जाएंगे, बात बनती है। और अपने व्यवहार से तो कोई छूटा ही नहीं है। साधु सन्यासी है, उसको व्यवहार नहीं, ऐसा किसने बताया? हिमालय में व्यवहार नहीं कौन बोलता है? जहां मन है वहां व्यवहार है। बोलो, जहाँ मन है वहाँ व्यवहार है। सुलोचना देवी जी बोलो, जहाँ मन है वहाँ व्यवहार है। आप समझती है? आप मानती है? हाँ। सच्ची? श्याम सुंदर जी को समझाएगी? श्याम सुंदर जी सच्ची बात है? सच्ची बात है। अरे वाह, तो आप दोनों समझदार हैं। सीता देवी जी, अरे ये तो उत्तम शाह, ये तो बहुत समझदार है। बड़ी अच्छी बात है। वो समझने योग्य है। इसीलिए हमारे शास्त्र में सभी जगह बताया और सारा विश्व में एक ही माना गया है कि खुद मन से ही जीव मात्र प्राणी मात्र बंधा हुआ है अपने आप से, और मन से ही मुक्त पाया हुआ जीव प्राणी मनुष्य, और मनुष्य ही मन से मुक्ति पा सकता है और कोई ही नहीं। इसलिए मनुष्य की कीमत है। और वो मन से मुक्त पाया हुआ मनुष्य वो जीवन मुक्त दशा प्राप्त हुआ मनुष्य है, और वो ही महात्मा कहलाता है। महात्मा एक उपाधि नहीं है, वो दशा है। क्या बताया? उपाधि नहीं है, दशा है। उपाधि नहीं है, उपाधि तो दी जाती है, उसका कॉन्वोकेशन होता है, और जब्बा पहनते हैं और लगाते हैं सबको, उसके ऊपर लगता है। सबको हवा पूरनी पड़ती है। ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, जाओ पीएचडी, डॉक्टर, उपाधि। ये आप्त पुत्र, ये पदवी नहीं है,
उपाधि नहीं है। ये दशा का स्थान है आपका। किसी के पर मालिकपन न करने वाला, क्या बताया? किसी के पर मालिकपन न करने वाला। अरे वाह वाह, है नहीं? शाह साहब नहीं बोलते? मुझे सिखाया आपने, तो आपने समझाया तो इतने में समझ में आया मुझे। ऐसा ही महात्मा का पद है। महात्मा बोलते हैं, आत्मा तो है ही सभी जगह, लेकिन वो उसको किसी को मालूमात नहीं मैं कौन हूं। इसीलिए जो शरीर है, देह है, वहां ही उनकी मान्यता, बिलीफ चली रहती है, और वो मान्यता से उसका भाषा का व्यवहार, जीवन का व्यवहार बना रहता है। बोलो साहब। तो इस ढंग से उसका स्टेट भी बना रहता है, घूमता रहता चक्रावे में, भटकना, जन्म मरण के चक्रावे में। तो उसका भी स्टेट है ही नहीं, जैसा महात्मा का स्टेट है। वो पदवी नहीं है, उपाधि नहीं है, तो उनका स्टेट क्या? तो कि उनका स्टेट है, उनका भी स्टेट बोला जाता है, क्योंकि आत्मा शब्द तो आता ही है ना। वहां आत्मा शब्द जहां है उसका स्टेट बुना ही जाता है, उसका इंसल्ट नहीं किया जाता, तो उसको मिथ्यात्व स्टेट बोला जाता है। मैना जो सही स्वरूप से आत्म स्वरूप नहीं है, वहां खुद को आत्म स्वरूप मानना, वो अपने मान्यता से, वो जो मिथ्या मान्यता है, वो मान्यता से मैं हूं मानना, इसीलिए मेरा है ऐसा मानना। मैं और मेरापन से मेरा जीवत्व, जीवन। बोलो साहब, क्या करे? चलता ही रहता है। उसमें तो कोई प्रॉपर्टी राइट, उसके पर कोई शू नहीं कर सकता। नो फ्रिंज, देयर इज नो फ्रिंज ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट इन दिस, टू बिलीव ऑन one's own self and to claim one's own relative self as mine. उसका प्रॉपर्टी राइट को फ्रिंज, इज इट फ्रिंज्ड बाय एनीबडी और एनीबडी कैन शू? नहीं नहीं नहीं, इवन रेडिकल्स कैन शू, लेकिन पनिशमेंट कर सकते हैं। हम बोले ऐसा करो, आप तो पुत्र नहीं करते, नहीं? हाँ साहब सूरज जी, नहीं, सच्चा धर्म वहां है तो तब भी वहां है, जो क्रिया से नहीं बनता वो तप बोला गया। इसीलिए तीसरी और चौथी आज्ञा वो तप है, सही अर्थ में, भगवान की भाषा में तप है, वो क्रिया वाला तप नहीं है। पहली और दूसरी आज्ञा धर्म स्वरूप है, उससे अंदर समझ में इतना जितना फिट होता गया है, जितनी जागृति बढ़ती जाती है, इतनी तप क्रिया आसानी से बनती है, और जितनी जितनी तप क्रिया बनती है उससे विशेष जागृति बनती रहती है, और जितनी विशेष जागृति बनती रहती है, इतनी विशेष जागृति से दोनों दृष्टि आसान से, अपनी दोनों स्वभाव से, व्यवहार दृष्टि का स्वभाव से व्यवहार, निश्चय दृष्टि का स्वभाव से निश्चय, दोनों साथ साथ में रहते हैं। बोलो, दोनों साथ साथ में रहते हैं। यही जीवन मुक्त दशा का महामुक्त प्रयाण है। यही जीवन मुक्त दशा का महाप्रयाण, और यही पांचवी आज्ञा की फलश्रुति है। यही पांचवी आज्ञा की फलश्रुति है। आपको शुद्धात्मा का वही खाता ढूंढना नहीं पड़ता, तो मिलता है कहां है साहब? शुद्धात्मा का वही खाता मिलता है कहां? अकाउंट बुक है कहां? श्याम सुंदर बोलो ना। हाँ, शुद्धात्मा का अकाउंट बुक तो हो क्या बोल करते हो आप? और उसमें रकम जमा करे, क्या करूं, कैसे करूं, किस पेन से करूं, किस कितने से, कहां से सही लाऊं? अरे भाई, और डिजिटल इंक, नॉन डिजिटल इंक, नॉन डिजिटल कितना, नॉन डिजिटल सही करो जाओ। वो तो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश की सही है, और कुछ नहीं है। अकर्ता भाव सही है।
वह तो शक्ति करता है, वो तो सहज से ही रहा करता है, अभी मुझे रखना ही नहीं पड़ता। और मैं किसी के ऊपर आरोपण नहीं करता, एलिगेशन नहीं करता कि मच्छर ने मुझे काटा, चींटी मुझे चिटक गई, नहीं। तो मेरा हिसाब अकाउंट था, तो मेरा अकाउंट तो पूरा हो गया। इतनी फाइल का अकाउंट था, इतना फाइल का अकाउंट तो मेरा पूरा हो गया। जितना हुआ इतना मेरा खाता तो भरा। कहां कितना आया, कहां सही आई, साहब बोलो ना, कौन सा बुक में लिखा मैंने? तो 5वीं आज्ञा की फलश्रुति मिली कि नहीं? साहब माफ करो, अभी एक पद बोलो। चलो चलेगा साहब? उत्तम शाह, धर्म में पुरुषार्थ है और तप में पुरुषार्थ की पराक्रम है, तो दोनों बात सही है, बस इतना ही समझना था। लो ले लो साहब। तो फलश्रुति वो समझ लेना है। अभी जब जहां तक फलश्रुति सहज नहीं होती, वहां से आज्ञा स्वरूप बनती है ना। फलश्रुति सहज स्वरूप नहीं बनती, वह तो आज्ञा स्वरूप बनता है ना। आज्ञा स्वरूप महीना हमारी सिंसियरिटी, यही बात बनती है और कुछ नहीं। कि निश्चय, उसमें वो निश्चय की सिंसियरिटी, मैं आज्ञा धर्म से ही हूं, वो अपनी निश्चय की सिंसियरिटी जितनी है उतना ही आपका वो सहजपना, नेचुरलिटी आज्ञा की आपको बनती रहेगी। जाओ, मैं कुछ करने को नहीं आऊंगा, मेरा वचन बोल, उसके पीछे काम लगेगा आपको। जाओ। जय सच्चिदानंद। भगवान नी भूमिका आदे निहारी, हमें केवा भाग्यशाली, हमें केवा भाग्यशाली। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति ने चाबी फाड़ी, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति ने चाबी फाड़ी। आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे। सप्तक मास मावो आस्वाद श्रुति नो छे, सप्तक मास मावो आस्वाद श्रुति नो छे, आस्वाद श्रुति नो छे, आस्वाद श्रुति नो छे। वांदाने वच कासो, वांदाने वच कासो। अज्ञान मान्यताओ एड़े दीदी उड़ावी, अज्ञान मान्यताओ केवा पुण्य सारी, हमें केवा पुण्य सारी। भगवान नी भूमिका आदे हमें निहारी, भगवान नी भूमिका आदे जो भी सना करारो लावे छे बेकरारी, जो भी सना करारो लावे छे बेकरारी।
सचेतन दावा करे करारी। के दरमियान आपको जहां जहां व्यवहार में परिस्थितियां बनती रहेगी, वैसे वैसे सभी व्यवहार में ये मिश्र चेतन प्राप्त हो रहा रहेगा। मिश्र चेतन मैं और मेरी मान्यता है, जहां शरीर देह वो ही मैं हूं, और इसीलिए देह का प्रत्येक देह के मालिकीपन के हिसाब से मेरा ही है, और देह के हिसाब से व्यवहार में जो कुछ बन रहा है उसमें मेरापन है, और वहां मैंपन भी हूं, कहां सब जगह छाया हुआ हूं। अब समझे? उसके अंदर आपको ये दो दृष्टि से रहना, और जो रोज निश्चय व्यवहार चरण विधि जितनी सिंसियरिटी से एक दफे करेंगे उपयोग से, अर्थात निश्चय दृष्टि की शुद्धात्मा प्रकाश में, उसको उपयोग बोलते हैं। तो तीसरी और चौथी आज्ञा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, और फाइलों का संभाव से निपटारा करना है। वो दोनों तब स्वरूप से आसानी से रहेगी, और पहली दो आज्ञा भी धर्म स्वरूप से रहेगी। आप समझे? क्यों कि ऐसी सभी परिस्थितियों में मिश्र चेतन में आप व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार में आपसे रहना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन आप आज्ञा में भी आ गए हैं, इसीलिए आप शुद्धात्मा है और व्यवस्थित शक्ति करता है, और व्यवहार से आप सभी फाइलों का संभाव से निपटारा में है, और व्यवहार दृष्टि से है। इसीलिए सभी में भी शुद्धात्मा पहला देख के सभी को व्यवहार दृष्टि से ही देखेंगे, और इसी ढंग से जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। जैसा हमेरा सॉफ्टवेयर से हमें जगत नियंता शक्ति चलाती है, वैसा ही प्रत्येक का सॉफ्टवेयर से, वही शक्ति से सबका सॉफ्टवेयर से सब चलते रहते हैं। उसमें व्यवस्थित शक्ति का स्वयंपन कुछ नहीं है, वो भी पर है, इसीलिए पराधीन बताया था। स्थूल संयोगो, बोलो स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, और वाणी के संयोगो, और वाणी के संयोगो, और है और पराधीन है, और है और पराधीन है, अदर है और अदर डिपेंडेंट है, अदर है और अदर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी कराने वाले हैं, और डिपेंडेंसी कराने वाले हैं। ये मिश्र चेतन है, इसीलिए वो उसकी खुद इच्छा नहीं है, लेकिन आप वो खुद डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी करवाने जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट बने हैं तो तब से रहना पड़ेगा आपको, और धर्म से। आप समझ गए? देखो चलो ये दो लाइनों का अर्थ है। जो विश्व ना करारो लावे छे बेकरारी, जो विश्व ना करारो लावे छे बेकरारी, ते माय मिश्र चेतन दावा करे करारी, ते माय मिश्र चेतन दावा करे करारी, दावा करे करारी, दावा करे करारी, आरोपी माही जज, आरोपी माही जज, कहे जे अमोने आत्मा रूपे जो जीत तारे, कहे जे अमोने
शुद्धात्मनि समाधि अवगाढ़ सुख सैया शुद्धात्मनि समाधि अवगाढ़ सुख सैया अवगाढ़ सुख सैया अवगाढ़ सुख सैया हमें नीरा कुड़ मुकामी हमें नीरा कुड़ मुकामी मोक्षे जई सुनी के व्यवहार दे निकाली मोक्षे जई सुनी से व्यवहार दे निकाली हमें केवा पुण्य सारी हमें केवा पुण्य सारी भगवान नी भूमिका आदे हमें निहारी भगवान नी भूमिका आदे हमें निहारी संयम परिणमावे हे प्रेमी शुक्ल ध्यानी संयम परिणमावे हे प्रेमी शुक्ल ध्यानी हे ज्ञान क्रियाकारी अहो स्यादवाद बानी हे ज्ञान क्रियाकारी अहो स्यादवाद बानी अहो स्यादवाद बानी अहो स्यादवाद बानी हम केवड़ ज्ञान प्यासे हम केवल ज्ञान प्यासे दादान काज आभो देशु हमें जुगाड़ी दादान काज आभो देशु हमें जुगाड़ी हमें केवा भाग्यशाली हमें केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पाते मुक्ति जावी भारी ज्ञानी पुरुष पाते मुक्ति जावी भारी दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो 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 दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना 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 सिंह जय जयकार हो दादा भगवान
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।